एस कई बार कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसको बीच में ही अधूरा रख के दूसरा काम स्टार्ट करता है, इसलिए क्योंकि कहीं पर भी जब इसकी स्टार्टिंग होती है फिर इसके बीच में दूसरा आ जाता है। जहाँ पर भी आप कर्व देखते हैं वहाँ पर ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV। We've been talking about numbers and numerology, alphabets and how they are related. This video is going to be mostly in English, so in case if you do not understand, you can comment me in the comment section below and ask me. I would be responding to each and every one of you. So this is mostly in English for your better understanding, and in case you don't understand, so no worries, I will be able to guide you in Hindi also, but in between I would be using a bit of Hindi. So let's start with the video today. We're talking about numbers, we're talking about numerology, we're talking about different ways of doing numerology. But what is the first thing which is very important in numerology? Of course, your name. Because you cannot be changing your date of birth, right? So when you cannot change your date of birth, what you can do? You can rectify your name or probably change your name completely. But how that helps you in today's time? And does these alphabets help you in some way? Yes, it does. Now, what are these alphabets? Alphabets are representing sounds, shapes, and numbers, correct? Now, what does a sound do? Sound is something when you speak. So now my name is Jyoti. So it's a Jyoti, right? जब आप ज्योति बोलते हैं तो वो साउंड का जो एट्रीब्यूट है वो सामने आता है। When you talk about the shape, it creates in your mind. अगर आपको पता नहीं कि आपको ज कैसे लिखना है, Y कैसे लिखना है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको लिखना समझ जाते हैं तो आपके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती है। So, shape is what it registers in your mind, and then come the numbers, which are the actual vibrations of it. Of course, in my previous videos I mentioned, and even now I'm telling the same thing, that you do not call people by their numbers. मेरा नाम ज्योति जगवानी है. It could be representing a number 1 and a 9, but आप मुझे number 1 and 9 नहीं बुलाएंगे. I have an identification. So ये alphabets आपको identify करते हैं. And how alphabets help you to achieve something or to lose something. सारे alphabets आपको suit करते हैं या नहीं करते हैं. हर alphabet के साथ एक planet associated है. हर alphabet के साथ एक element associated है, जिसमें सबसे मेजर 3 elements होते हैं: air, water and fire, correct? इसको हम ट्रिनिटी कहते हैं. This is called Trinity. Now air, water and fire is a major, right? Earth तो हर जगह होता है. So this is a major thing which you need to see in an alphabet. और ये आपको कैसे help करता है आपके अंदर इन चीज़ों को एलिवेट करने में या एग्जॉस्ट करने में. आपका जो इनिशियल जो फर्स्ट लेटर होता है आपके नाम का, वो आपकी पहचान बनाता है. आप कैसे सोचते हो, आप चीज़ों के प्रति कैसे अप्रोच करते हो. हाउ डू यू इनिशिएट एंड अप्रोच थिंग्स एंड हाउ डू यू थिंक इज व्हाट योर फर्स्ट लेटर शोज. दैट्स हाउ योर आइडेंटिटी बिकम्स. इसीलिए आपके नाम के इनिशियल्स लिए जाते हैं जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं. सो लेट्स से माय नेम इज ज्योति जगवानी. आई एम पॉपुलरली नोन एज JJ. सो दीज आर द 2 letters which makes the initial of my name, and also it shows how I see the world, how the world sees and perceives me,
and approaches me. Correct? अब लेटर्स में अलग अलग प्रकार के हम डेफिनेशंस देखेंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक लेटर में दो भाग होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का. देयर इज एन अपर हाफ एंड द लोअर हाफ. All these things makes difference. The upper half is the mental plane, the spiritual life, okay, and the lower one is your materialistic, the more physical form of your life, right? So this is how you judge a person. In coming series, you will know more about alphabets and how to use an alphabet in which way. अगर आप अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं किसी अच्छे अल्फ़ाबेट से, तो वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए और कौन से तरीके से लिखना चाहिए, so that it brings the best out of him. This is how the alphabets are designed. Alphabets are tools for written words. अगर हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत होती है. सो वी नीड वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. सो जब हम एक नाम को फॉर्म करते हैं तो हमें उसमें कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स चाहिए होते हैं. करेक्ट? सो दिस इज़ हाउ it forms a word and sentences. So this is the biggest tool to know each other. अब सबसे अहम बात है कि इसमें कितने प्रकार के हैं और क्या नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करता है. Well, to know more that you can do it in my courses of numerology and understand which alphabet suits you according to which number. But here I will be giving you the understanding of the alphabet and वो क्या बताता है आपके बारे में. अगर आपका नाम S से स्टार्ट होता है तो वो क्या है और उसके मतलब क्या है. Let's begin with that. So S, जैसा कि हम जानते हैं, it has two C's, right? We'll see that. So S has two C's. हम S को इस तरीके से बनाते हैं, right? Okay, this is an S. Now जब हम S बनाते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ देखते हैं. एक ये ऊपर से C बनता है और एक ये नीचे से C बनता है. ये एक serpent की शेप में है, यानी कि एक सांप के फॉर्म में, राइट? जब हम सांप बनाते हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं, राइट? एस को जब हम ऐसे लिखते हैं तो एक इसका अपर भाग है और इसका एक लोअर है. ये जो है स्पिरिचुअल है, ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है ये मटीरियलिस्टिक है. और इसके दोनों मुंह ओपन हैं, अनलाइक मेनी अदर अल्फ़ाबेट्स जिसके क्लोज्ड होते हैं. दिस इज़ वन अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेट सीरीज़ जिसके दोनों साइड्स ओपन हैं. इसको उतनी ही स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती है जितनी मटीरियलिज्म चाहिए होती है. ये उतना ही आध्यात्मिक होता है जितना अपने इस भौतिक जीवन में, संसार में रह रहा होता है. ऑल्सो दिस पार्ट, this part is future, the upper part, and this is of past. S का जो ऊपर पोर्शन होता है, ये वाला हिस्सा, ये फ्यूचरिस्टिक होता है, इंट्यूटिव होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का है तो माइंड प्लेन है, मेंटल प्लेन है. और जो नीचे का भाग होता है, दैट इज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. इसका मतलब ये है
कि इनकी अच्छी मेमोरी भी होती है. सो दे आर वेरी क्रिएटिव विद अ गुड मेमोरी. हर इंसान अच्छी मेमोरी के साथ हो और गुड मेमोरी के साथ हो ऐसा नहीं है. क्रिएटिव एंड मेमोरी साथ में बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस है. सो अ पर्सन स्टार्टिंग नेम विद एस अदर्स क्रिएटिव है. सो अगर आप देखोगे एस जिनके नाम स्टार्ट होते हैं उनकी मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती है एंड अच्छे एक्टर्स भी बनते हैं एस से. लाइक सुनील दत्त साहब, अ वेरी फेमस एक्टर, अ लेजेंड. We know many. Sharmila Tagore, right? So name a few जिनका नाम S से स्टार्ट होता है, right? S are very independent. इनको किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं अच्छी लगती. No interference. ये किसी के भी अंडर काम करना नहीं चाहते. ओके. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनके लाइफ में जो ये कर्व आता है ना, ये जो एस में जो कर्व आता है, ये इनके लाइफ में एक अच्छा कर्व ले आता है. यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में कई बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं, चाहे वो माइंड के प्रति हो, प्लेस के प्रति हो, वर्क के प्रति हो. Anything. They bring changes in life because they have a curve. So यहाँ पर इनके चेंज आएंगे. अल्फ़ाबेट्स जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स, तो इनके अलग अलग शेप्स होते हैं. प्राइमरीली सर्कल होता है, स्क्वायर होता है और ट्रायंगल होता है. ये तीन मेजर शेप्स होते हैं जो एक अल्फ़ाबेट को बनाते हैं, राइट? सो S is something which is spiritual and also materialistic. इनके कई बार लाइफ में चेंजेस आते हैं because of the curve they carry. Also very important factor, इनका दोनों तरफ मुंह खुला हुआ रहता है ऐसे. सो उसकी वजह से ये हमेशा अपने फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं और अपने पास्ट को याद रखते हैं. सो दे रिमेंबर देयर पास्ट, सो दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी. ऑल्सो दे डू नॉट लाइक इंटरफेरेंस, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है. हाँ, नेगेटिव साइड्स भी हैं इसके, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और इसकी वजह से उनके फेलियर्स भी होते हैं. सो दे शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ, दे शुड थिंक, उनको एक टीम और एक फैमिली के साथ ज़्यादा चलना चाहिए सोच करके. एस कई बार कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसको बीच में ही अधूरा रख के दूसरा काम स्टार्ट करता है. इसलिए क्योंकि कहीं पर भी जब इसकी स्टार्टिंग होती है फिर इसके बीच में दूसरा आ जाता है. जहाँ पर भी आप कर्व देखते हैं वहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि जब हम रास्तों पे चलते हैं तो हम मोस्टली ये देखते हैं कि जब कर्व्स आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं. या तो आप लेफ़्ट लेते हो या राइट लेते हो या आप यू टर्न्स लेते हो, करेक्ट? सिमिलरली एस के साथ यही होता है. जिसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट, जिसके नाम में फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस होता है, उनकी सोच ज़्यादा ऐसी होती है, तो मिड स्ट्रीम चेंज कर देते हैं. अल्फ़ाबेट से आप बहुत कुछ जान सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में एंड उसके अनुसार उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं. In coming videos, you would be learning more about alphabets, how they affect you, your personality, how people see you, that
and how it brings prosperity or any kind of problems in your workplace or in your personal life. So which is the right alphabet which you should be selecting for your childbirth or for your company or for your logo? What is it which should be the letter for your workplace and your personal life? Think about it. In the next video, I will be coming up with Q. What does Q do to us? And how Q is related and how Q defines us in a person. So keep watching my video to learn more about alphabets and numerology and Vastu and astrology on Facebook, on Instagram and YouTube. So subscribe to my channel and like my page and follow me on Instagram. Thank you so much for watching me. Love you all. Bye-bye.